So, Atma Namaste, everyone. I welcome you all to the session of Tea Time with our special guest. Today we have with us, I'm Prerna. I'm a pranic healer and a center owner, and I'm an associated certified pranic healer and a basic pranic healing instructor. Today we have with us Rahul from Pune. Rahul is a businessman, a owner of many construction projects. He has taken pranic healing as a full-time profession since 2017. So I welcome Rahul to our session of Tea Time as a guest. Welcome Rahul to our session. प्रेरणा प्लीज म्यूट कर दो ना सबको. Yeah. Hello everybody. Rahul, please unmute yourself. Hello everybody. Am I audible? मुझे सुन पा रहे हो? Yes. Okay, great. Okay. Hi all of you. I can see a few of you here. काफी लोगों का कैमरा बंद है. चलो ठीक है. Let us start today's session with a simple invocation. Okay, join your hands on your heart. We humbly invoke the Universal Supreme God, Divine Father, Divine Mother. We humbly invoke all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers. We humbly invoke all the healing angels, healing ministers, beings of light, and all the great ones. We humbly invoke Master Choc, Oxena High Souls. Thank you, all of you. Thank you for your divine guidance, divine blessings, divine help, divine protection. We thank you in full faith, so be it. Thank you for making this session fruitful and super successful. We thank you in full faith, so be it. Okay, so good afternoon, everybody. Aap log, okay, I am new to this session. How do you start with the session? I mean, what do you want to know? Aap log kya janna chahoge? So Do you Rahul, have any सबकी questions? yes, Rahul, सबके अपनी stories है. Everybody has their own stories that how they came into pranic healing. So would you like to share your stories that कि तुम pranic healing में कैसे आए? Okay. मेरा स्टोरी बहुत बेसिक स्टोरी है, जैसे यूजुअली लोगों का होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन प्राणिक हीलिंग दे हैव entered, I mean, they came across pranic healing just because they were seeking something to get healed. तो वो लोग या तो हील होना चाहते थे या अपने किसी रिलेटिव को हील करना चाह रहे थे. So मेरा ऐसा था करके I was having a allergic history of 17 long years, right from 1999 till 2016. तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. मेरा डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी मेरा पढ़ाई हुआ है. एंड मैं खुद एक मेडिकल स्टोर चलाता था. एंड तो मेडिकल का काफी सारा नॉलेज है, मेडिसिन का भी नॉलेज है. तो बहुत सारी मेडिसिन में ऑलरेडी ले चुका था. तो एलर्जिक हिस्ट्री इस लेवल पे बढ़ गई कि मुझे दवाइयों ने तक असर करना बंद कर दिया था. तो 2017 में आई am very fond of South Indian food. So my favorite South Indian joint, it shifted to a new place, and I reached out fishing for that place कि भाई मेरा South Indian joint कहाँ पे है. पीछे शोर आ रहा है बहुत. Rahul, unmute yourself. You've got unmuted. So I reached out to that South Indian place and a joint where I used to have idli sambar and dosas and everything. And वहाँ पे I was just waiting for that parcel. So मैंने एक board पढ़ा which said the Divine Pranic Healing Center. And I was very curious because it said healing center. So I was just asked about this Pranic Healing Center to that layman, the worker who was working in the South Indian joint, and out of nowhere, he just said a plain line which said, यहाँ पे आदमी लोगों का repairing होता है.
he was a completely uneducated person and he was like, he gave me a statement which said, यहाँ पे आदमी लोगों का repairing होता है. And this particular sentence, it motivated me to climb up those stairs and reach out to a pranic healing center. And after that, I went for healings. I took healings for 9 long months. Every day healing लिया है to get myself healed. And simultaneously, I kept on going for all the workshops, जैसे कि basic pranic healing है, advanced है, psychotherapy है, soul है, aratic yoga है. By the time I finished my healings and I got completely recovered, मेरे already सारे courses हो चुके थे. So June 2017 मेरा construction का भी business है, तो somehow I got detached कि भाई नहीं, मुझे construction में इतना मजा नहीं आ रहा है. ठीक है, पैसा मिलता है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग दैट मच, व्हाट डू यू से, कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं था. सो जून 2017 में आई स्टार्टेड अ प्राणिक हीलिंग सेंटर एंड आई स्टार्टेड विद अ मोटो कि जब मैं ठीक हो सकता हूं तो बाकी के लोगों को भी मैं ठीक कर सकता हूं. तो ये सोच के मैंने चालू किया था एंड नाउ आई एम हियर एज अ फुल टाइम प्राणिक हीलर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी इंटरेस्टिंग राहुल. सो राहुल, प्राणी हीलिंग कौन कौन से एस्पेक्ट में, कौन कौन से एरियाज में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में? कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको प्राणी हीलिंग को अप्लाई कर सकते हैं? ओके, अगर आप प्राणिक हीलिंग को वैसे देखो तो प्राणिक हीलिंग जो है एक एनर्जी साइंस है. अब जैसे अगर मैं आपको सबसे बेसिक एग्जांपल दूं एनर्जी हीलिंग का, तो इंडिया में आज तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों घरों में नजर उतारी जाती है. आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि नजर उतारना किसको बोलते हैं, ठीक है? सो नजर उतारने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? नमक और राई का इस्तेमाल किया जाता है. तो जब हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो ज्ञानी थे, उन लोगों को दिव्य दृष्टि हुआ करती थी उस जमाने में. तो वो लोग जो हैं, उन्होंने कुछ अगर मेथड बताया था कि आप इस तरीके से किसी भी बच्चे या किसी भी आदमी को आप ठीक कर सकते हो, आप नजर उतार सकते हो. फर्ज करो करके, फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने 51 टाइम्स आपको नमक से नजर उतारने के लिए बोला था उस जमाने में, क्योंकि उनको समझ में आता था कि 51 टाइम्स नजर उतारने से पूरा जो आपका ऑरा है वो क्लीन हो जाता है. तो वो धीरे 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 करके, जैसे हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको दिखाई तो नहीं देता है, ना तो दिव्य दृष्टि थी, ना समझ में आता है, बट दे हैव अ हैबिट ऑफ कॉपिंग. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग, दे मस्ट हैव कॉपीड दैट. उन्होंने मिमिक करने का ट्राई किया. वो 51 से समझो 21 बार हुआ, 21 से 11 बार हुआ. आजकल तो मैंने देखा है करके लोग 3 बार नमक घुमाएंगे एंड दे वांट द एंटायर ऑरा टू बी क्लीन्ड, व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड विद प्राणिक हीलिंग आई हैव सीन दैट मोर देन 90-95% आपका ऑरा काफी लेवल पे क्लीन हो जाता है. एंड इट क्लियर्स मोस्ट ऑफ योर स्टफ, जैसे डिजीजेस है, फिजिकल एलिमेंट्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज. हमारे दिमाग में जो बहुत सारे थॉट फॉर्म्स आते हैं, जैसे हमको साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट एक है कि मोर देन 60,000 थॉट फॉर्म्स आर वी जनरेट एवरी डे. हम लोग 60,000 से ज्यादा थॉट फॉर्म्स पैदा करते हैं डेली. हम लोग सोचते हैं उतने थॉट फॉर्म्स हैं. अब वो थॉट फॉर्म्स जाते कहाँ पे है? तो दे आर सस्पेंडेड इन योर ऑरा. आपके ऑरा में वो रह जाता है. और जब वो ऑरा में रहता है, सो वहां पे आपको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन चालू होता है कि हर बार आप कुछ सोच करना चाह रहे हो एक, लेकिन आपको बीच में ही कोई थॉट फॉर्म अचानक से क्लिक हो जाता है, फिर आप उसकी तरफ मुड़ जाते हो, फिर आप कुछ करने के लिए बैठते हो, तो यू हैव अ डिस्ट्रैक्शन. तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं. तो प्राणिक हीलिंग में देयर इज अ प्रॉपर मेथड टू क्लीन दिस ऑरा इन द फर्स्ट प्लेस. एंड देन देयर आर एनर्जी सेंटर्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज चक्रास. वी क्लीन देम यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. प्राणिक हीलिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, बेसिक, एडवांस साइकोथेरेपी. अब अगर मैं फिजिकल एलिमेंट्स का बात करूं तो मोस्टली एडवांस प्राणिक हीलिंग उसमें काम करता है. अगर मैं साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का बात करूं, कि आज की डेट में 90% जो चीजें हैं वो साइकोसोमैटिक डिजीज है. जैसे आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड इश्यूज हैं, ये सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं. तो इनसे ट्रीट करने के लिए मास्टर चोआ जो हमारे गुरु हैं,
इन्होंने साइकोथेरेपी दिया है एंड उसके अलावा फिर अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है तो उन्होंने क्रिया शक्ति दिया है। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो उन्होंने आरातिक योगा दिया है। सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ आर कवर्ड विद प्राणिक हीलिंग मोस्टली। दिस इज आवर जनरल ऑब्जर्वेशन। So Rahul, pranic healing as a pranic healer तो हमको पता है कि how we can keep our energy body को हम कैसे clean रख सकते हैं, physical problem, emotional जो भी है। So जो लोग pranic healing नहीं किए हैं, those who are non pranic healers, वो लोग अपने एनर्जी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं, एथेरिक हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ओके, कुछ चीजें हैं जो नॉन प्राणिक हीलर्स भी कर सकते हैं। So what they can do is they can go for salt baths. अब salt bath कैसे लिया जाता है? आप आपके नियरेस्ट प्राणिक हीलर्स, प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर को पूछ सकते हो, या आप किसी भी प्राणिक हीलर को पूछ सकते हो फॉर दैट मैटर। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे करके सॉल्ट बाथ कैसे लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गेट सम थिंग्स कॉन्सिक्रेटेड फ्रॉम देम। कॉन्सिक्रेटेड यानी क्या कि बेसिकली आप लोग उसमें एनर्जेटिकली आप चीजों को प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि फर्ज करो, ओके, दिस इज अ पिंक बॉल। आपको दिख रहा है ये एक स्टोन है विच इज राउंड इन शेप एंड इट इज कॉल्ड एज पिंक क्वार्ट्स। ये पिंक क्वार्ट्स ऐसे होता है करके आप इसको प्रोग्राम कर लीजिए। आप किसी भी इंस्ट्रक्टर से इसको प्रोग्राम करवाइए, हीलर से प्रोग्राम करवाइए। अब पिंक कलर का क्या मतलब होता है? पिंक कलर यूजुअली अगर आप सोचोगे तो इट इज अ कलर ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है? तो अब जब आपको आपकी लाइफ में बहुत सारा लविंग एनर्जी का जरूरत पड़ता है, डे टू डे लाइफ में हमको सभी को जरूरत पड़ती है। तो जिन लोगों को ऐसी शिकायत है करके हम आपके फैमिली में सब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर है ना सब लोग गुस्सा करते हैं, हमारा खामा में चिड़चिड़ होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो ऐसे केस में आप ये बॉल्स को प्रोग्राम करके आपके ड्रिंकिंग वाटर में आप अंदर रख दीजिए सुबह के टाइम में, एंड यू कैन यूज दैट वाटर डेली बेसिस। मतलब यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, यू कैन यूज दैट वाटर फॉर कुकिंग एंड वॉट एवर यू प्लीज। आई मीन आप उसको कैरी कर सकते हो, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। एंड क्लेयरवॉइंटली ये चीजें देखी गई हैं करके जो पिंक एनर्जी होता है वो बेसिकली काफी सारे डिजीजेस को ट्रांसम्यूट करने में हेल्प करता है। ट्रांसम्यूट यानी उसका फ्रीक्वेंसी वो चेंज कर देता है। तो अगर किसी भी डर्टी एनर्जी, डर्टी डिजीज्ड एनर्जी का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे तो वो डर्टी डिजीज्ड एनर्जी रहेगी ही नहीं। सो दिस यू कैन डू। Plus, apart from that, if you are buying a second-hand vehicle और आप कुछ भी second-hand चीजें buy करते हो, तो क्या होता है उसमें पहले के जो ओनर्स हैं उनकी एनर्जीज होती है, ठीक है? आप लोगों में से कई लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा करके आप सेकेंड-हैंड व्हीकल जब बाय करते हो तो आपके एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स थे करके जिनका सेकेंड-हैंड व्हीकल जब वो बाय करते थे, भले वो बिजनेस के लिए बाय कर रहे हो, उससे वो इनकम जनरेट कर रहे थे, लेकिन उस गाड़ी के पर्टिकुलरली एक्सीडेंट्स ज्यादा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि पहले के जो ड्राइवर थे उनका हमेशा का ये थॉट फॉर्म रहा है करके गाड़ी चलेगी कहीं मुझे कोई ठोक ना दे, कोई मेरा एक्सीडेंट ना कर दे। तो दैट थॉट फॉर्म इज इम्प्रेग्नेटेड इनटू दैट व्हीकल। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो ये बहुत पहले से रिवाज है करके हम लोग हमारे मॉम डैड की चेन पहनते हैं। वो लोग बहुत अरसे से बीमार होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी चेन या उनका पेंडेंट या उनकी बैंगल्स, उनके ब्रेसलेट्स, उनकी घड़ी, व्हाट नॉट, एवरीथिंग विच इज गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग वी वेयर यूजुअली। तो ऐसे केसेस में ऐसा देखा गया है करके उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाती है एंड वी डेवलप दोज डिजीजेस एज वेल, दोज ईटिंग हैबिट्स एज वेल। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मतलब सबसे पहला जब मैंने 2016 में जब प्राणिक हीलिंग किया एंड आई केम अक्रॉस क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग में चीजें सिखाई गई करके आपको ऑर्नामेंट्स और जेम्स को कैसे क्लीन किया जाता है। तो जब मैंने वो चीजें समझी और मुझे ये चीज समझ में आई करके भाई एनर्जी की छाप जो है वो ऑर्नामेंट्स और जेम्स में भी रह जाती है।
तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे पापा को आज हाइपरटेंशन क्यों है। मेरी दादी को हाइपरटेंशन था, उनको डायबिटीज था। मेरी दादी ने एक पेंडेंट जो है वो उनके मरते दम तक उन्होंने पहना है, मतलब बेसिकली सिंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1980 टू 1996, 1997 ऑनवर्ड्स मेरे फादर ने वो पेंडेंट पहनना चालू किया, एंड ड्यूरिंग दीज 15-20 years he developed diabetes as well as hypertension. जैसे मैंने क्रिस्टल हीलिंग किया, सबसे पहले मैंने वो पेंडेंट निकलवाया। आई एक्सप्लेन हिम द रीजन। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। नाउ रिसेंटली आई केम विद अ क्लाइंट, अ क्लाइंट केम टू मी कि मेरी डॉटर जो है, मेरी सास एक्सपायर होने के बाद में मेरी डॉटर जो है वो डिप्रेशन में चली गई है। सो आउट ऑफ नोवेयर आई आस्क्ड हर अ सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपकी बेटी उसी रूम में सोती है, आराम करती है जहां पे आपकी सास सोया करती थी? शी वॉज लाइक यस, मेरी बेटी तो वही बेड पे सोती है, वही मैट्रेस पे सो रही है। आई लिटरली आस्क्ड हर टू चेंज द मैट्रेस, द बेड एंड द रूम इटसेल्फ, कि वो मैट्रेस आप फेंक दो, आप वो बेड को भी फेंक दो, यू बाय अ न्यू वन। एनर्जेटिकली आई प्रोग्राम सम इंसेंस स्टिक्स टू क्लीन दैट प्लेस। एनर्जेटिकली जितना मुझसे हुआ मैंने डिस्टेंस में उनका वो रूम को क्लीन किया। उनकी बेटी को 10 हीलिंग दिया, एंड विद इन 10 हीलिंग शी वॉज कंप्लीटली सॉर्टेड, शी वॉज आउट ऑफ डिप्रेशन। वहां पे ऐसा था करके, जो लेडी जिनका डेथ हुआ था वो उनका प्रोलॉन्ग सिकनेस था, वो काफी लंबे अरसे से बीमार थी, एंड मतलब 2-2.5 साल। तो जब आदमी को ये दिखता है करके भाई वो बीमार है, तो बेसिकली वो धीरे धीरे अल्टीमेटली दे गिव अप ऑन देयर लाइफ कि भाई अब तो मेरा लास्ट टाइम आ गया है, अब मेरे को जाना है, ऐसे। So the lady was constantly into depression since last 1.5 year because of COVID also. कि COVID में ना तो रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, जहां पे भी टीवी चालू करती है तो किसी का डेथ का खबर सुनाई दे रहा है। So I hope you all are well and you people are doing well with your family as well. काफी लोगों के लिए काफी हद तक टफ टाइम रहा है ये। So So this someone is is how you asking can. कि it can be good energy also जो हम अपने ancestors से लेते हैं। हाँ हाँ, आपको इंटेंशन रख के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आप उनसे, जैसे हमने अभी इन्वोकेशन किया है, यू कैन ऑलवेज इन्वोक फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, यू कैन इन्वोक फॉर द लाइफ फोर्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। ये वहां से जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, आप वो चीजों को आप इन्वोक कर सकते हो कि भाई हाँ चलो ठीक है, थैंक यू डियर एंसेस्टर्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद प्रॉस्पेरिटी, विद अबंडेंस, with good health, with happiness, with joy, with mercy, with peace, whatever you want in your life. And also आप लोग ये चीज भी कर सकते हो करके, जो चीजें आपको चाहिए हैं, बेसिकली अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा डोनेट करना सीखो। आई विल सजेस्ट कि आप लोग यू टाइथ सम अमाउंट। डोनेशन जो करना है, यू कैन गो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आप जाते हो, किसी भी टेम्पल में दे सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। Whenever you have a financial crisis, आप उसके बदले में हायर बींग्स को बोल सकते हो, या आपके पूर्वजों को भी बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो करके, may the good health generated by so and so donation return back to me in the form of good health, happiness and prosperity and abundance and more financial opportunities, जो कुछ भी है, आपको जैसा भी चाहिए। So this is one of the ways that you can use pranic healing also. Okay. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड स्टोन्स, हाउ दे आर कनेक्टेड? ओके, एस्ट्रोलॉजी एंड स्टोन्स। ओके, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या होता है, जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो आपके एनर्जी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो द क्लीनर योर ऑरा एंड योर चक्रास आर, आप पे उतना उसका इल इफेक्ट कम होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब बेसिकली अभी अगर आप स्टोन्स पहनते हैं तो स्टोन्स में होता क्या है, अ स्टोन इज गिवन टू प्रोग्राम to make a chakra bigger, temporary bigger, to solve your issues, temporary issues.
तो उसमें ऐसा होता है करके आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आपको रेड गार्नेट दिया जाएगा। अगर आपको फोकस करने में इश्यूज है तो आपको येलो सिट्रिन दिया जाता है। येलो सिट्रिन आपका कुछ नहीं करता है, येलो सिट्रिन आपका अजना चक्र को बड़ा करता है, जो कि आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाएगा। जब आप रेड गार्नेट पहनते हो, रेड गार्नेट का काम होता है करके आपका बेसिक चक्र, जिसको मूलाधार चक्र भी बोला जाता है, वो मूलाधार चक्र को बड़ा करता है। जैसे आपका मूलाधार चक्र बड़ा होगा वैसे वैसे आपका फाइनेंशियल जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ता है। सो द इजीएस्ट वे टू रिड्यूस what do you say साइड इफेक्ट्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, मतलब बेसिकली फुल मून है, न्यू मून है, जिसको हम लोग अमावस्या, एकादशी, ये वो जो कुछ भी बोलते हैं हम लोग, या फिर शनि दशा, महादशा, जो कुछ भी है। सो द बेस्ट पॉसिबल वे टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एनी प्लैनेटरी पोजिशन इज टू गेट योर ऑरा क्लेंस्ड। आप आपका ऑरा और चक्रास को जितना साफ रखोगे उतना ज्यादा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, उतना कम ये आपको अफेक्ट करेंगे। अब एक चीज आप ये भी करके ट्राई करके देख सकते हो करके सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ जब आप ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि आपको थकान कम होगी, उसके अलावा आपको थॉट फॉर्म्स कम आएंगे, आपको कंफ्यूजन कम होगा, ओवरऑल आपका जो हेल्थ रहेगा वो अच्छा होने लग जाता है। एंड दिस आई हैव बीन ऑब्जर्विंग सिंस 2017. I'm sorry, I was very bad student in 2016. So मुझे जब मेरी ट्रेनर ने जो मेरी हीलर थी उसने जब मुझे बोला कि आप हीलिंग प्रैक्टिस करो, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करो, आप मेडिटेशंस प्रैक्टिस करो, आप सॉल्ट बाथ्स लिया करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आई वाज लाइक ओके, ये तो चलो ठीक है बोल रही है, लेकिन घर पे थोड़ी आएगी देखने के लिए कि मैं कैसे नहा रहा हूँ। तो आई वाज लाइक दैट। So after that, when I came into pranic healing professionally, I realized that taking salt baths is making me more comfortable with my day-to-day life. So it was giving me clarity. मेरे relationships अच्छे होने लग गए, मेरे को financial issues मेरे कम हो गए, मेरा health जो deteriorate होता था वो stable रहने लग गया। So overall, there was a very, very good improvement in my life. Just after taking salt baths. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया करके पिंक क्वार्ट्स है, पिंक क्वार्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन गेट योर पिंक क्वार्ट्स प्रोग्राम बाय द एंड द बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली इज टू जस्ट इन्वेस्ट सम अमाउंट, 4,000 to 6,000, 6,500 समथिंग इज देयर ऑल ओवर इंडिया, उतना ही फीस है। यू कैन जस्ट सिट इन अ बेसिक क्लास, यू विल गेट टू नो हाउ द एनर्जीज वर्क, वो कहाँ आती है, कहाँ से आती है, आपका एनर्जी बॉडी कैसे कंटामिनेट होता है, एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। मतलब चक्रास कैसे होते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या है, स्टोन्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको स्टोन्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी है सो आप इमीडिएटली रिलेट कर पाओगे कि स्टोन्स हमें पहनने चाहिए भी कि नहीं चाहिए। जैसे अगर आप रात को ऑर्नामेंट्स पहनते हो तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रात को ऑर्नामेंट्स निकाल के सोते हैं और सुबह उठने के बाद में फिर से पहन लेते हैं, कभी उसको वाटर से वॉश ही नहीं करते हैं। So all simply you can do is you can just hold any bracelet, any ornament under the running tap water. आप सिर्फ उसको पकड़ के रखिए। हायर बींग्स को सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, ओके थैंक यू हायर बींग्स, थैंक यू फॉर क्लीनिंग दिस फ्रॉम ऑल द डर्टी स्टफ। ठीक है, आप सिर्फ डर्टी स्टफ बोल दो, वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। एंड दैट इज सॉर्टेड। ऑल गुड। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है? You can unmute yourself one by one. Just a minute, there's a problem in just a minute, sorry to interrupt. There is some problem, I don't know why the meeting is showing कि 2 मिनट में end हो जाएगा। might be कुछ problem हो गया है, तो आप लोग please rejoin कर लीजिएगा meeting. Okay, not a problem. 2 hours का meeting है, but I don't know कुछ problem हो गया लग रहा है। So अगर please rejoin कर लीजिएगा meeting को उसी ID से। Okay,
Can I Done? ask my question? Yeah, please. Yeah, I want to know what is the correct procedure of salt bath. Salt को rub करके छोड़ना चाहिए कि Okay. salt पानी में मिला के? ठीक है, देखिए अभी सबसे आसान तरीका सॉल्ट बाथ का ये होता है, आप नॉर्मल आपका बॉडी को वॉश कर लीजिए। जब आप जो सोप वगैरह आप अप्लाई करते हैं, शैम्पू अप्लाई करते हैं, यू डू ऑल दैट स्टफ, ठीक है। जब आपकी बॉडी गीली होती है तो गीली बॉडी पे आपको नॉर्मल टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गेट दैट टेबल सॉल्ट प्रोग्राम्ड बाय द हीलर और योर नियरेस्ट सेंटर। दे विल आस्क यू फॉर सम एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, लेकिन आप वो लमसम में करा सकते हो। जैसे मैं मेरे यहाँ पे 50 kg एक साथ कॉन्सेक्रेट करता हूँ। सो आप उसको जब इस्तेमाल करोगे तो कॉन्सेक्रेटेड सॉल्ट वर्क्स इवन बेटर। उसको आपको कुछ नहीं करना है, टेबल सॉल्ट आपको लेना है, आपके हाथों पे आप जैसे धीरे से लगाते हो, टेबल सॉल्ट को लगा दो, आपकी बॉडी पे जहां जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे कीजिए। आई विल सजेस्ट नाक के ऊपर मत कीजिए, आपके जॉस के नीचे, गले में, चेस्ट पे, टमी पे, लिवर, स्टमक, एवरीवेयर, किडनीज, आपका बैक में जहां पे हाथ जाता है वहां पे, सभी जगह पे। एंड यू जस्ट सिट फॉर 2-3 minutes एंड यू हैव टू जस्ट चैंट ओम, ठीक है। अगर आप ओम चैंट कर सकते हो तो यू जस्ट चैंट ओम। अगर आप आमीन चैंट करना चाहते हो तो आप आमीन चैंट कर सकते हो। अगर आप भगवान में नहीं मानते हो, यू आर एथिस्ट, देन यू कैन सिंपली ब्रीथ, ओके, जस्ट ब्रीथ। You must be believing in the universe. Ask the universe to clean your stuff, to clean the aura. And every time you chant Om, Amin, or you breathe, and breathe, मतलब inhale, exhale, you can just release, intentionally आप release कर सकते हो, okay, I release all the dirty energies